Hello everyone, this is paper first to be part first, foundations of political science. In our previous video we have covered concepts like rights and liberty, their meanings and types of rights and uh, liberty, and today we will talk about the next concept that is equality. So first we will try to understand what does it mean, and second one, here comes the two aspects of equality, and then comes types of equality. So first one is the meaning of equality. The concept of equality is as important for the society as the concept of liberty. Generally, it is the perception regarding the meaning of equality that all citizens of the society are equal and they should have equal opportunity to develop their personality. And in the context of the society, it means to oppose the discrimination or such type of behavior. Second one is two aspects of equality. Same aspects are there as we have studied about in the previous video, that was liberty. So first one is negative aspect. The negative aspect of equality connotes the abolition of privileges based on birth, caste, color, creed, etc. And positive aspect includes, according to this aspect, all citizens should be given equal opportunity to develop their personality. Thus, equality is a multi-dimensional concept, and it can be said that equality can be defined as everyone in the society will be given equal opportunity to develop their personality, and there will be no privileges or privileged section of the society, and it also indicates the end of discrimination on the above mentioned grounds. Next one is types of equality. So first one is civil equality. Equality, that's mean laws are there and this equality is protected by law. And here comes the second concept of that is rule of law. So according to rule of law, all the persons are equal before the law, and there will be no discrimination on ground of same grounds are there, caste, color, creed, etc. And whoever will not follow the law will be punished. Second one is natural equality. Natural equality, that is considered by birth, and according to this concept, by birth all the persons are equal, and state is bound, or a state should respect that equality and should protect that. Next one is social equality. Social equality, this there should be abolition of untouchability, and there should be equality, and there shouldn't be there should be no discrimination on such grounds as I have mentioned earlier. Next one is political equality. No discrimination, equality, same things we will have to write here. And political equality also means that equal opportunities for the political participation. Here we get some chances like right to vote, right to contest election, right to elect our representative, right to hold public office, right to criticize the government, right to petition, etc. Next one is economic equality. No discrimination, equality, same, it will remain the same, and there will be no economic exploitation, and basic needs of the all the people will be fulfilled. आज हम लोग बात कर रहे हैं समानता के बारे में। तो जो समानता की अवधारणा है, ये हमारे समाज के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि स्वतंत्रता की अवधारणा। तो जब हम लोग समानता का अर्थ करते हैं, तो समानता का जनरली ये अर्थ माना जाता है कि समाज के सभी नागरिक समान हैं और उन्हें अपने विकास के समान अवसर मिलने चाहिए, और इसीलिए जो भी जिस भी तरीके का भेदभाव हमारे समाज में हो या इस तरीके का जो बिहेव हो, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसे अपोज करें, उसका विरोध करें। इसके बाद में समानता के दो आस्पेक्ट्स, पक्ष आ जाते हैं। पहला आ जाता है नकारात्मक, दूसरा आ जाता है सकारात्मक। जब हम लोग नकारात्मक आस्पेक्ट की बात करते हैं, बिल्कुल सिंपल इसका मीनिंग है समाज से विशेषाधिकारों का अंत। नकारात्मक समानता मतलब समाज से विशेषाधिकारों, विशेष प्लस अधिकार, विशेषाधिकारों का अंत मतलब समाज में कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं रहेगा,
यदि ऐसा है तो उसे समाप्त कर दिया जाएगा। और ये जो प्रिविलेज होते हैं लाइक बेस्ड ऑन बर्थ, कास्ट, कलर, क्रीड, जाति, रंग, नस्ल, जन्म आदि के आधार पर किसी भी प्रकार के कोई भी विशेषाधिकार नहीं होंगे। सकारात्मक इसका एस्पेक्ट ये है कि इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को विकास के समान अवसर दिए जाएंगे। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि समानता एक बहुआयामी अवधारणा है और जिसका अर्थ हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं कि समाज के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समान अवसर दिए जाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी विशेषाधिकार या विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा समाज में। और इस तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, जो अबव मेंशन्ड ग्राउंड्स हैं, उपरोक्त जो आधार हैं भेदभाव के, उन्हें भी समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद में हमारे पास में आ जाता है समानता के प्रकार आ जाते हैं। देखिए, पहला हमारे पास में आ जाता है नागरिक समानता। नागरिक समानता मतलब कानूनी समानता, जो कि कानून द्वारा जिसे कि कानून प्रोटेक्ट करता है, जो कानून द्वारा संरक्षित होता है। और इसके अंतर्गत हमारे पास में कानून का शासन आ जाता है। विधि का शासन, विधि का शासन मतलब कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा इसके अंतर्गत, और जो कोई कानून का उल्लंघन करेगा उसे समान रूप से दंड दिया जाएगा। दूसरा आ जाता है प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता, जो विचारक प्राकृतिक समानता के समर्थक है वे ये मानते हैं कि समानता होती है वो जन्म से होती है, इसीलिए जन्म से सभी व्यक्ति समान है और राज्य का ये कार्य है कि वह इस समानता को रिस्पेक्ट करे, सम्मान करे और उसे संरक्षित करे। नेक्स्ट आ जाता है सोशल इक्वेलिटी, आ जाता है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता मतलब जो उपरोक्त आधारण के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, समाज में समानता होनी चाहिए। और इसी के अंतर्गत ये बात शामिल है कि जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत की जो भावना है वह नहीं होनी चाहिए, उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है राजनीतिक समानता। आ जाता है राजनीतिक समानता का मतलब होता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन, इक्वेलिटी, भेदभाव नहीं, समानता होनी चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में भाग लेने के सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलने चाहिए। इसके अंतर्गत हमें अधिकार आ जाते हैं जो हमें मिले हुए हैं, मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार आ जाता है, सरकार की आलोचना का अधिकार इसके अंतर्गत आ जाता है, याचिका का अधिकार भी इसके अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट आ जाता है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता मतलब कोई भी भेदभाव नहीं, समानता होना, किसी भी प्रकार का आर्थिक जो शोषण है वो नहीं होगा और सभी व्यक्तियों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। तो बेसिक नीड्स हैं जो हर पर्सन की शुड बी फुलफिल्ड। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।